Here new topic what transpose of matrix. It is very important and very easy topic. Okay, so transpose of a matrix means just interchanging row and column. Okay, so if we have matrix, suppose A equals to Aij m by n, that is in general we can write a matrix Ij m by n order का मैट्रिक्स है. ओके, so if we change its row to column and column to row, that means suppose A B C 1 2 3 0 5 6, this is suppose 3 by 3 matrix, and this is first row, this is R1, this is R2, this is R3, this is R3. So क्या करना है, इस इन रो को कॉलम बनाना है, और you can say just like this is what C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम. So इस कॉलम को रो बना देना है. this row, this is कॉलम, इस कॉलम का अगर रो बनाए और रो को अगर कॉलम बनाए, that means ABC को कैसे लिखना पड़ेगा, ये रो में लिखा हुआ है, कॉलम में लिखना है. सो ABC 1 2 3 1 2 3, this is a row, just make it column. Here 0 5 6, so write 0 5 6. So you can see if you interchange row to column or column to row, then we can get like this type of matrix. That is ABC, this is row, this is column. 1 2 3 row, column. Or you can think just like column to row. A10, A10. This is column to row. Column to row. B25, B25. Column C36, C36 to row. So if we interchange row to column or column to row, then we can get a new matrix that is called transpose of the original matrix. So let A equals to this, or you can say if A equal to this, then transpose of A is given by it is denoted A dash or A T. यहां पर अगर ए आई जे लिखा है और इंटरचेंजिंग कॉलम टू रो, सो यहां पर क्या लिखना चाहिए नोटेशन में, हेलो, इफ ए आई जे पोजिशन वाइज, सी हियर टू 1, ये एलिमेंट यहां चला जाएगा, ये एलिमेंट यहां जाता है. सो इफ original matrix is Aij, then its transpose, this is the notation for transpose of A dash or A power not A T means transpose of A. So ये notation यहाँ पर क्या आना चाहिए, हेलो, tell me anyone, क्या आना चाहिए, Aij लिखा हुआ है, first row then column, and now we interchange row and column. So यहाँ क्या होना चाहिए, हेलो, उल्टा होगा ना बस, J I, और यहां पर m by n, that is n by m. Here we take example of square matrix, but suppose we are having just like this 1 2 0 5 3 9, this is 3 by 2 matrix. इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले, क्या होना है, इस फर्स्ट कॉलम को रो बना देते हैं 1 0 3 1 0 3, एंड सेकेंड कॉलम को रो बना देते 2 5 9 2 5 9. सो ऑर्डर चेंज हो गया, 3 by 2 था तो 2 by 3 हो जाएगा, 2 by 3, दिस इज 2 by 3, इसका ट्रांसपोज है. सो दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन. इन जनरल A इक्वल टू Aij m by n, देन A dash A ट्रांसपोज इक्वल टू Aj n by n. ओके, ऑर्डर चेंज हो जाता है. As given order is changed mn to
nm. ओके, ट्रांसपोज का डेफिनेशन है. नाउ द एक्सरसाइज 3.3 is very very simple but time taking. You have to write step by step and you can solve all the questions. Okay, so first of all this is the definition of transpose. Okay, now properties of transpose. Properties means, first suppose constants, multiply matrix by constant, this is constant, and then its transpose equals to k a dash, where k is constant. K is constant. K is constant. Second, a dash dash equals to a, means if you take 2 times transpose of a matrix, then you can get original matrix. All these properties 1 2 3, and another property is third, that is a plus b. Transpose of addition or subtraction, you can also say this is equals to transpose plus b transpose. You can write also dash भी लिखते हैं या तो t भी लिखते हैं. a plus b transpose equals to a transpose plus b transpose. If you take here minus sign, then also here will be minus sign because of this property. K can be taken as a -1 as a constant. So in that case यहाँ अगर माइनस लेंगे ना तो यहाँ पर माइनस आएगा. Okay, so this property can be verified very easily by taking any of the general मैट्रिक्स. जनरल मैट्रिक्स लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं, एग्जांपल से भी हो जाएगा. ओके, फोर्थ पार्ट इज ए बी. इफ ए बी इज डिफाइंड, मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड फॉर 2 मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज, प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होता है ये, दिस इज डिफरेंट सम, बिकॉज फर्स्ट ट्रांसपोज बी एंड देन ट्रांसपोज ए. सो इट कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग एनी एग्जांपल. ओके, एग्जाम्पल मीन्स बाय टेकिंग जनरल वैल्यू ऑल्सो. जनरल वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते. मैट्रिक्स ए ले लिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड इफ ऑफ एनी ऑर्डर, बट प्रोडक्ट शुड बी कंप्यूटेबल. कंप्यूटेबल मीन्स प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए. ओके, देन यू कैन प्रूव ऑल दिस प्रॉपर्टी. एक्सरसाइज 3.3 हैविंग क्वेश्चंस जस्ट फॉर वेरीफाइंग. वेरीफाई करने के लिए टोटली the particular matrices are given and you have to verify this property, this property, this property, this property. Very simple property. Okay, ये verify करना एकदम easy है. ये find करने का meaning क्या है? First take an matrix of any order with any element and then first find transpose and then again find transpose. You can see the resultant matrix is itself matrix. So in this way we can verify all the property, because a plus b dash equals to a dash plus b dash. How can we prove it? Suppose we are having matrix 2 matrix a and b of here a plus b means a and b both should have same order, because addition है ना, addition है, addition should be defined. So इसका अगर ट्रांसपोज लेना है, इसका अगर ट्रांसपोज लेना है, so first of all add 2 matrix. जो 2 मैट्रिक्स होगा ना, दोनों को ऐड करो, तो वी गेट ए न्यू मैट्रिक्स एंड देन टेक इट्स ट्रांसपोज. सो यू कैन गेट लेफ्ट हैंड साइड. एंड फॉर राइट हैंड साइड व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट टेक ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड टेक ट्रांसपोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एंड देन ऐड अप. सो दैट विल बी द राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. फॉर बाय टेकिंग जनरल एलिमेंट्स ऑफ a matrix, and you can also verify it. Always true. Okay, here if we take minus sign, then here also will be minus sign by this property. Okay, so a b dash is equals to b dash a dash. It can be also proved by taking example. So we have to solve some questions from exercise, because example having also questions related to verifying this. Only verifying here. Okay, and after this there are 2 special type of matrix called skew matrix, symmetric matrix and skew symmetric matrix. Okay, so here definition क्या हुआ, केवल हमने ये दिया ट्रांसपोज ये होता है, ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी होता है. So we have to use this property also. क्लियर है?
और एक डेफिनेशन है यहां पर, डेफिनेशन थर्ड इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and skew symmetric matrix with real entries. Real entries means the elements of matrix are real number, not complex number. Okay, so for real number entries in the matrix we can define two different type of matrix. That is, first is symmetric matrix, symmetric. Symmetric matrix, first on symmetric, and second skew symmetric. Skew symmetric. Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Its definition is A dash equals to A, and its definition is A dash equals to minus A. A is called symmetric matrix if A dash is equals to A, transpose of A equals to itself. Then we can say if for a matrix A dash equals to A dash equals to A, then we can say the matrix is symmetric. If A dash equals to minus A, then skew symmetric matrix. Suppose we are given matrix 2, 3, 4, 5. ये है matrix, ये square matrix है, and we can take also row matrix, column matrix of this 1, 2, 3. So इसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज क्या आना है, इसका ट्रांसपोज which type of order is this? Here order क्या है? हेलो हेलो, ऑर्डर बताओ, हेलो 3/1 तो ऑर्डर है, तो अभी इसका ट्रांसपोज क्या होना है, ट्रांसपोज रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो. ये कॉलम है, उसको रो बना दो, क्या बनेगा 1 2 3. ये दिस इज 3/1, दिस इज 1/3. सो ऑर्डर चेंज तो m/n तो n/m हो जाता है. ये ऐसे तो ट्रांसपोज है, रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना. ओके, यहां पर A डैश इक्वल्स टू ये होना है, तो इसका ऑर्डर किस टाइप का होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए ना. विदाउट स्क्वायर कैसे हो पाएगा, A डैश और A की वैल्यू सेम होना है. इसका जो ऑर्डर होगा A का भी ऑर्डर वही होना चाहिए, तभी तो इक्वलिटी होता है. सो स्क्वायर टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए ना, तब तो ये डिफाइन होगा. सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a matrix A is called symmetric matrix if its transpose is equals to itself. A dash equals to A. Skew symmetric matrix if A dash equals to minus A. A dash का minus A होना चाहिए. मीन्स सेम मैट्रिक्स मिलेगा, नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा. क्लियर है? सो हियर we can write also, see, because objective type question के लिए small टाइप के बहुत सारे डिस्कशन होता है इसमें, है ना. So here see, if A is equals to Aij, A equals to Aij, then A is symmetric. A is symmetric if Aij equals to, for all ij, क्या लिखना चाहिए, Aij equals to, वहां पर क्या लिखना चाहिए, जो एक मैट्रिक्स यहां पर है उसको ट्रांसपोज निकाले और सेम आया. ट्रांसपोज मीन्स जब भी A का ट्रांसपोज निकालते हैं Aij क्या बन जाता है, हेलो, Ji बन जाता है. तो Aij equals to Ji फॉर ऑल आई, ऐसा हो जाएगा. Aij equals to Ji. दैट मीन्स व्हाट, ये जो होता है ये इधर इधर के एलिमेंट सेम हो जाता है. बिकॉज ये होता है व्हाट, दिस इज 2 1, दिस इज 1 2. ये क्या होता है, दिस इज 3 1, दिस इज 1 3. पोजीशन होता है.
ओके, सो ये दोनों ये सब क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। दैट इज जो डायगोनल है, डायगोनल के साइड में जो एलिमेंट है, डायगोनल के साइड में जो एलिमेंट होता है, ये सब एलिमेंट इक्वल होता है। इधर का और इधर का सेम दिखता है सिमेट्रिक में। क्लियर है? और एस्कोसिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यहाँ 2 है तो यहाँ -2, यहाँ 3 है तो यहाँ -3, उसी नेगेटिव आता है। और एज इट इज सो फॉर सिमेट्रिक aij इक्वल्स टू aji फॉर ऑल ij। ओके, मतलब ये एलिमेंट सेम है। और एस्कोसिमेट्रिक में ये दोनों एलिमेंट क्या होता है, नेगेटिव साइन, सेम बट विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। Okay, so here we see that this is for symmetric. Okay, and also A is skew symmetric. Skew symmetric if aij equals to aji with negative sign, with negative sign for all I j। ओके, नेगेटिव साइन को इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव साइन के साथ इक्वल होना चाहिए इधर इधर के एलिमेंट। ओके, और टेल मी, इस केस में तो स्क्वायर मैट्रिक्स से होना चाहिए। ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होना चाहिए तो यहां पर diagonal for all ij we are writing, but for diagonal elements I and j इक्वल होता है ना। डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, और 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसके लिए क्या होता है, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, दैट इज I and j आर इक्वल। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, for diagonal elements I equals to j, therefore skew symmetric मैट्रिक्स के लिए, skew symmetric मैट्रिक्स के लिए यहां पर I equals to j लेते हैं तो क्या बनेगा, सब सेम हो जाएगा। aii equals to minus aii implies because I and j are equal, so ii लिख दिए दोनों जगह, aii equals to minus aii, बोथ आर सेम, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2aii इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स aii इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i। सो क्या डिसीजन निकला? हेलो, ये क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का, ये दिस इज ए क्वेश्चन। यहां से क्या डिसीजन मिला, aii इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i, दैट मीन्स व्हाट, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4, ये 5 5, all are zeros for symmetric matrix. That means what we can say, क्या बोल सकते हैं बताओ? symmetric matrix में क्या होता है? हेलो, बिकॉज सिमेट्रिक और symmetric के डेफिनेशन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, and diagonal elements of symmetric matrix are what? हेलो, aii equals to 0 means what? प्रेम, बस 2 3 लोग रिप्लाई कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। So all the diagonal elements of symmetric matrix will be 0 always। अगर कोई symmetric matrix है उसका diagonal elements हमेशा 0 होगा, इसका मीनिंग यही है। ये इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का, ऑलवेज एग्जाम में आता है। सो प्रूफ कैसे करें, ऐसे ही करना है प्रूफ। aii equals to 0 means what, ii 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होता है मैट्रिक्स के, सो दे आर 0 फॉर symmetric matrix, all diagonal elements are 0। okay, now transpose of a matrix, what is the transpose of a matrix? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? हेलो, अब कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ ट्रांसपोज मींस क्या है, रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर देना है। ओके, नाउ सी हियर, बहुत इजी एक्सरसाइज है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज। ओके, सो
one thing is remaining now. Symmetric matrix means what? A dash equals to ये मिलना चाहिए. Axiosymmetric means A dash equals to माइनस आना चाहिए. डैश निकालना मीन क्या है? रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है. क्लियर है? Now see, if we take a matrix A, a square matrix A, and take its transpose, take a matrix A and its transpose A dash and add करें. Suppose A is a square matrix, then A dash is also a square matrix. ये एक मैट्रिक्स लेना है और उसका ट्रांसपोज लेना है, दो मैट्रिक्स मिल जाएगा. बिकॉज ट्रांसपोज लेंगे तो कुछ अलग मिलेगा. सो दोनों को क्या करें? ऐड करें. एनी मैट्रिक्स, सपोज दिस 1 2 0 5 और ले ली, और इसका 1 2 0 5, ये अगर ये है, ये अगर ये डैश है, तो इन दोनों को ऐड करना है. जस्ट ऐड अप दिस टू. ओके, ऐड करने के बाद ये जो मैट्रिक्स बना, दिस इज सिमेट्रिक. वी कैन प्रूव इट फॉर एनी मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का, सॉरी स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है. ए को और ए डैश को अगर सम करेंगे, ये क्या होता है? सिमेट्रिक होता है. क्लियर है? और ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, इन दोनों को अगर डिफरेंस लेते हैं, जैसे ये हो गया और इसी का ट्रांसपोज ले लिए. स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 2/2, 3/3, 4/4, एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स यू कैन टेक, मींस 2/2, 3/3, 4/4. सो दिस टू वी हैव टू सम. अगर सम अप करेंगे ना तो क्या बनेगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे, एस्क्योसिमेट्रिक बनेगा. दिस इज एस्क्योसिमेट्रिक. First, second, if A is a square matrix of any order, then this. यहां पर देख भी सकते हैं, देखो 0 2 0 1 2 0 5 ट्रांसपोज दिया, 1 2 इधर 0 5 उधर. ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे, इसके आएगा 1 1 2 0 2 2 and 2 and 10. दिस सिमेट्रिक और नॉट? सिमेट्रिक, बिकॉज ये डायगोनल है, इसके दोनों तरफ के एलिमेंट सेम है. सिमेट्रिक. अगर ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक में आता है. और अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट, जस्ट सब्सट्रैक्ट इट, सो क्या आएगा एलिमेंट? हेलो, सब्सट्रैक्ट करने से क्या एलिमेंट आना है? फर्स्ट एलिमेंट. हेलो, टेल मी. फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट 2. यहां पर क्या आना है? यहां पर -2. यहां पर क्या आना है? 0. अब देखो ये एस्क्योसिमेट्रिक हो गया. एस्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना है? डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम होते हैं, बट नेगेटिव साइन के साथ होता है. या 2 है या -2 है, और डायगोनल एलिमेंट 0 है. सब्सट्रैक्ट किया तो एस्क्योसिमेट्रिक हो गया. सो इन जनरल, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर, 2/2 का लिया, 3/3 में भी वही होना है, 4/4 में भी वही होना है. So A is a square matrix of any order, then this is symmetric, this is axiosymmetric. Now constant का multiple, ये what is the rule? डैश निकालते हैं तो क्या होता है? constant ऑटोमेटिक बाहर, और A डैश ये होता है इन जनरल. जैसे सपोज 2 से इंटू किया 1 0 0 5 को, इस मैट्रिक्स को, दिस इज ए मैट्रिक्स. 2 से मल्टीप्लाई, 2 मीन्स कांस्टेंट,
ओके, इस पूरे का ट्रांसपोज लेते हैं, पूरे का क्या लेना है, ट्रांसपोज। सो टोटल का ट्रांसपोज लेना है तो क्या मिलेगा यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मल्टीप्लाई इट, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो क्या होना है, 2 0 0 10 और फिर इसका ट्रांसपोज, बिकॉज पहले मल्टीप्लाई करना है एंड देन ट्रांसपोज लेना है। मल्टीप्लाई हो गया, नाउ टेक ट्रांसपोज। सो व्हाट, 2 0 0 10, दिस ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, भाई रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ओके, सो ये हो गया। यहां से फिर 2 को बाहर लिख देते हैं। फ्रॉम ईच एलिमेंट जस्ट टेक आउट 2 आउटसाइड। सो क्या होगा, 1 0 0 5, ये, और वो जो है 1 0 0 5, ये क्या है, इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ए, बिकॉज 1 0 इधर, दैट मीन्स ये जो कांस्टेंट है इटसेल्फ बाहर आ जाता है, और ये 2 जो मैट्रिक्स है उसका डैश है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का डैश है। या इस सेम टाइप का मैट्रिक्स लिया उसके, ये ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज लेंगे ना तो सेम दिखेगा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। अगर 0 0 कुछ और लेते हैं डिफरेंट तो हो जाता। दैट मीन्स फाइनली ये है कि जो कांस्टेंट है और ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, ये किस साथ डैश लग जाता है। 2/2 3/3 4/4 कोई भी किसी भी ऑर्डर का किसी भी टाइप का मैट्रिक्स लेके यू कैन वेरीफाई, कोई किसी भी टाइप का मैट्रिक्स लेके वेरीफाई कर सकते हो। ओके, नाउ see here, main thing, there is a very important theorem, also you can say important result, that is also asked in the exam for verifying. Okay, verify ये करना है, suppose A is any square matrix, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ओके, देन ये होता है सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इफ दिस इज ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, एनी मैट्रिक्स, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, कांस्टेंट से मल्टीपल करने से अभी जो होना है वो ठीक है। हियर इफ ए इज सिमेट्रिक देन के इज आल्सो सिमेट्रिक, बिकॉज के का जो रोल है जब डैश निकालते हैं, ए डैश इक्वल्स टू ए सिमेट्रिक। इफ ए इज सिमेट्रिक then ka dash is equals to, we can write ka dash equals to ka, because a is symmetric, a is symmetric, so a dash equals to a. Now ka dash equals to k, that is ka is also symmetric, means इसको अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तब भी वो सिमेट्रिक होगा, because a dash symmetric, then for ka के के लिए क्या करें, के का डैश निकाले, वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट ये देखना है, ये सिमेट्रिक है, सो के ए का डैश निकाल रहे हैं। सो रूल के बाहर हो गया, ए डैश आ गया, और ए डैश इक्वल्स टू ये लिख दिया। सो इसका ट्रांसपोज इटसेल्फ, के ए का ट्रांसपोज के, दैट मीन्स अगर ये सिमेट्रिक होता है तो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक। सिमिलरली यू कैन show for this, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, so here you can see that constant multiple of this is also स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये अगर सिमेट्रिक है तो इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी सिमेट्रिक होगा, इसको भी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बिकॉज सपोज a डैश इक्वल्स टू माइनस, दिख रहा है ना, ए डैश इक्वल्स टू माइनस है, और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल मींस दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट मल्टीपल मींस के आउटसाइड ए डैश, एंड ए डैश इक्वल्स टू माइनस, ए डैश इक्वल्स टू माइनस है फॉर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, के माइनस, सो माइनस के, ओके, सो ये क्या लिख दिया, के ए का डैश माइनस के, दैट इज के ए इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सो इसको अगर कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. इट कैन बी वेरीफाइड वेरी इजीली बाय टेकिंग एनी ऑफ द एग्जांपल. एक ही वैल्यू कोई भी मैट्रिक्स लेके ना वेरीफाई कर सकते हैं. सो एक क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, बिकॉज लेंथी रहता है, लिखना पड़ता है ना. सो हियर ये सिमेट्रिक है, ये इसको सिमेट्रिक है. नाउ वी सी दैट ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय हाफ, 1/2. a प्लस ए डैश. ये जो सिमेट्रिक है इसको अपने किससे मल्टीप्लाई किया? हाफ से. इसको भी हाफ से, कांस्टेंट, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई. इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई. ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है. ये इसको सिमेट्रिक है तो वो भी इसको सिमेट्रिक. इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों को ऐड कर. जस्ट टेल मी, अब सॉल्व करेंगे ना एज ए जनरल इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू क्या होना है? हेलो, बस जस्ट सॉल्व इट. हाफ से इंटू कर दो, फिर ऐड प्लस माइनस करो, क्या वैल्यू आएगा इसका? हेलो, what will be the value? जल्दी करो. हेलो, once again ट्राई करो, क्या होना है? कोई रिप्लाई क्यों नहीं करते यार? तुम लोग पढ़ते हो कि घर में? ए आ रहा है 60 ना, ए आ रहा है. ओके गुड, ये आएगा ना. जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो. बुक लाखों करोड़ों बुक है, बस अभी पढ़ने के लिए थोड़ा समझना मेन है. यहां से लेकर यहां तक समझाया हूं. अभी ये बनाया था, ये क्या बना था, ये क्या बना, एक मैट्रिक्स बनाया था. ये दो चीज बनाया, दोनों को हमने ऐड किया. ऐड किया तो ए तो आएगा, तो श्योर है ना. माइनस प्लस हाफ ए डैश और माइनस हाफ ए डैश कैंसिल. ए प्लस ए 2a, 2a को 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा ना, ए एक. तो मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस. और ये है सिमेट्रिक, वो है इसको सिमेट्रिक. इन जनरल हो रहा है, ये कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स नहीं लिया है कि मैट्रिक्स की एलिमेंट ये है तो ऐसा होता है. इन जनरल यू कैन टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग एनी रियल नंबर एज द एलिमेंट्स. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर वाला एलिमेंट्स वाला स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसके लिए ये ट्रू है, इन जनरल ट्रू हो रहा है. सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज इटसेल्फ स्क्वायर मैट्रिक्स. So any square matrix can be written as a sum of symmetric and symmetric matrix, because ये symmetric matrix है. ये प्लस ए डैश सिमेट्रिक, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ सिमेट्रिक. अभी तो डिस्कस किया. हाफ ए माइनस ए डैश एस्क्यू सिमेट्रिक. सो ये सिमेट्रिक है और ये एस्क्यू सिमेट्रिक है. दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड also as known as a theorem. Okay, so any square matrix can be written as a sum of symmetric and symmetric matrix. Any square matrix. Okay, this is symmetric, this is symmetric. So any square matrix can be expressed as sum of symmetric and symmetric matrix. Symmetric matrix. क्लियर है? दिस इज द थ्योरेटिकल पोर्शन बिफोर 3.3 एक्सरसाइज. ये इतना ही है बस थ्योरेटिकल पोर्शन. हाउ कैन वी फाइंड द ट्रांसपोज, द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग एनी ऑफ द एग्जांपल. कोई भी एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हैं. एंड दिस इज द मेन
theorem. Schistometric means a dash equals to minus a. Symmetric means a dash equals to a for square matrix. And any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and schistometric. So अगर कोई if a is a square matrix, then a plus a dash symmetric होता है, a minus a dash schistometric होता है. इसको constant से multiply करो, then also symmetric and schistometric. So here we can see that like this. So we can write a matrix as a sum of symmetric and schistometric. Okay. So see इसका जो exercise है ना, exercise के question देखो 3.3 exercise 3.3 exercise का ना question 1 जो there are 12 questions, just we have to solve 1 or 2 or 3 questions because time is now remaining 15 to 20 minutes. So ये very simple questions. So see question 1. सब लोग क्वेश्चन 1 देख रहे हो ना? हेलो, देखो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इट इज फॉर योर प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो दिख रहा है क्या बोला है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. यू कैन सी फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम को रो बना दो, हो गया ट्रांसपोज. सिमिलरली सेकंड स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 5 1/2 और -1 रो मैट्रिक्स आ जाएगा. सेकंड मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका भी अगर ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा? हेलो, फर्स्ट रो 1 -1 है तो कॉलम बन जाएगा वो 1 -1 और सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 3. तो आइदर रो को लेके कॉलम बनाओ और कॉलम के लेके रो बनाओ, दैट इज द ट्रांसपोज. ये मैट्रिक्स है उसका डैश इक्वल टू दिस 3/3 आल्सो यू कैन डू. ओके, सो इसमें ना 1-2 क्वेश्चन ही करेंगे सॉल्व, है ना? इसमें लिखना मेन रहता है. सी क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3. हेलो, सब लोग देख रहे हो कि नहीं? यस सर. एकदम इजी क्वेश्चन है. फॉर टुडे दिस एक्सरसाइज इज फॉर योर होमवर्क. इसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस आना चाहिए. सबको दिख रहा है क्या प्रूव करना है? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या लिखा है? हेलो, क्वेश्चन सेकंड इज रिटन व्हाट? A is given a matrix 3/3 matrix, B is also given 3/3 matrix, then verify that. Verify करना है. A plus B dash equals to A dash plus B dash. We know this is the property. Similarly, A minus B dash equals to A dash minus B dash. We have to verify it. Verify it means what? Left hand side find करो, right hand side find करो. वर्बली हो जाता है. जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है ना, क्या करना है? दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, ऐड करके उसका डैश निकालो. लेफ्ट साइड मिल गया. और राइट हैंड साइड क्या करना है? So just find out A dash. A dash निकालो, B dash निकालो, दोनों को सम कर दो, राइट हैंड साइड हो गया. सो बोथ साइड यू कैन सी दैट इक्वल हो जाएगा वो. ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड उसमें माइनस लेके करना है. पहले दोनों का सब्सट्रैक्ट करो, फिर डैश निकालो, और फिर A dash एंड B dash का सब्सट्रैक्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. यू कैन सी द इक्वल. थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? हेलो, क्वेश्चन थर्ड में A dash is equals to given. So we require A plus B dash equals to A dash plus B dash. Verify करना है. For that A dash is given. Then how can we find A? Tell me. अब यहाँ पर यही है एक चीज है, A dash given है थर्ड क्वेश्चन में. क्वेश्चन थर्ड, what is given? A dash and then B. A dash and B given. And we have to verify A plus B dash equals to A dash plus B dash. Okay. So A dash. How can we find A dash? Because we require A na, because for finding left hand side of first A plus B, then transpose property को तो verify करना है. So A dash कैसे निकलेगा? हेलो, A dash given है, A कैसे निकलेगा? हेलो, बताओ कोई. A dash equals to A. A dash equals to A ना. So for this question just write like this only. 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, है ना? यहाँ पर क्या है? गिवन A dash is equals to given. A dash equals to given. What? A dash equals to 3 - 1 0 4 to 1. 3 - 1 0 4 to 1. This is A dash. Given A dash implies A equals to A dash equals to, because we know A dash dash. A dash is this. We require A equal to A dash
डैश ऑफ डैश और ट्रांसपोज ऑफ ए. सो ए डैश इक्वल टू दिस, उसका ट्रांसपोज निकालना है. 3 minus 1 0, 3 minus 1 0 एंड 4 2 1, इसका ट्रांसपोज निकालना है. क्या बन जाएगा ये? 3 minus 1 0 4 2 1 for writing transpose, because a equals to a dash dash. a dash की वैल्यू ये, इसका ट्रांसपोज निकाले तो वो आया. That is a and b is given here. Okay, so for first to verify, first left hand side equals to क्या है? a plus b का dash है, dash here transpose, anything you can write. अब a मिल गया ये, this is a and b is given also, so we can write like this. A is this 3 minus 1 0 4 2 1. This is A. Okay. Plus B. What is B? B is minus 1 2 1. Minus 1 2 1 and 1 2 3. 1 2 3. This. Transpose of this. ये है ना? A plus B. A B. सेम ऑर्डर, सो वी कैन ऐड ट्रांसपोज. ये ट्रांसपोज लगा है, इन दोनों का ऐड करना है, फिर डैश निकालना है. ओके, सो क्या होगा यहां पर? दिस इज इक्वल्स टू, आफ्टर एडिंग 3 minus 1 2 minus 1 2 1 0 plus 1 1 4 plus 1 5 2 plus 2 4 1 plus 3 4. दिस इज ट्रांसपोज. एडिशन किया, ट्रांसपोज है. अब ट्रांसपोज लेना है इसका. ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा यहां पर? इसी का ट्रांसपोज लेना है. 2 1 1 5 4 4. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज व्हाट? a dash plus b dash. Okay, a dash plus b dash. A, we know a 3 minus 1 0, 3 minus 1 0 4 2 1. This is a dash plus b dash. B is also given here. Minus 1 2 1, minus 1 2 1 and 1 2 3, 1 2 3 dash dash. Right hand side, a dash plus b dash. This plus this, a dash b dash. Now take its transpose first. इसका ट्रांसपोज लेना है. ट्रांसपोज लेने क्या होना है? 3 minus 1 0 4 2 1 4 2 1. दिस प्लस इसका भी ट्रांसपोज लेना है. minus 1 2 1 and 1 2 3. सो इन दोनों को ऐड करें. अब हो गया, ट्रांसपोज आ गया, इन दोनों को ऐड करना है. सेम ऑर्डर है. सो 3 minus 1 2 minus 1 2 1 0 1 1 4 1 5 2 2 4 5 4 4. Clear? So this is right hand side. So you can see left hand side is equals to this and right hand side is equals to this. Both are set. Hence left hand side equals to right hand side. Here not, hence it implies left hand side equal to this, hence verified. हेलो, समझ में आया कैसे प्रूव हुआ? हेलो, इसी मेथड से सबको करना है. फुल एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन दिस. ओनली एडिंग करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. लेफ्ट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगा. ट्रांसपोज निकालना है और ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, बस इतने डिफरेंस है. फॉर सेकेंड, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है सेकेंड पार्ट जो दिया हो उसमें क्या होना है? बस माइनस लेना है. यहाँ पर यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस लेना है, सॉल्व कर देना है. यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस लेना है, सॉल्व कर देना है. सेम आएगा. क्लियर है? दिस इज फॉर प्रैक्टिस फॉर यू. ओके, पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसमें, बिकॉज नहीं तो ये सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा टाइम लेंगे ना तो
पूरा डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा, है ना। सो दिस वाज द क्वेश्चन 3। नाउ 4, सी 4 में क्या करना है? 4 क्लियर है ना? हेलो, 4 इज ऑल्सो क्लियर आई थिंक। क्यों? 4 में ए डैश गिवन है तो ए निकाल लेना है पहले। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए प्लस 2 इंटू बी एंड देन उसका ट्रांसपोज फाइंड कर देना है। ओके, सो 4 इज ऑल्सो सिंपल। हेलो, Yes, sir. 4 का क्या, देखो 4 क्वेश्चन इजी है, क्लियर है। ये सब बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, ओनली ये तो लेफ्ट फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। नाउ सी क्वेश्चन 5। दिस इज इंपॉर्टेंट property for transpose. What? AB dash equals to B dash A dash. It can be also easily verified. Left hand side find करना है, right hand side find करना है. Okay. Two questions are there. Two sets are there. A equals to 3/1, B equals to 1/3. Same, दोनों में same दिया हुआ है. So इसमें क्या करना है? Okay, AB का ऑर्डर क्या होगा? हेलो, tell me anyone the order of AB, because we have to verify AB equals to AB dash equals to B dash A dash. So just find the left hand side and right hand side. Left hand side finding means just we have to multiply AB and then take its transpose. That will be the left hand side. And right hand side separately take transpose and then multiply B dash before B dash and then after A dash. ओके, सो टेल मी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा इधर देखो, इसमें है ना क्वेश्चन 5. सो वी हैव टू वेरीफाई, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए बी डैश, ए बी का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड, ए बी डैश, ए बी ट्रांसपोज. सो मल्टीप्लाई, डू इट्स मल्टीप्लीकेशन. ए बी, ए 1 minus 4 3, 1 minus 4 3, A, this is A, and B, minus 1 2 1, minus 1 2 1, this is multiplication, and then we have to take transpose. So tell me, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा? हेलो, 3/3. 3/3. सो एलिमेंट बताओ, फटाफट बताओ, एलिमेंट क्या होगा? पहला वाला एलिमेंट, भाई पूरे 11 या 12th स्टूडेंट कनेक्टेड हो, मल्टीप्लिकेशन में 3/3 होना है. डायरेक्ट बताओ, ये तो 1/1 1/1 3/1 यही तो है, फटाफट तो होता है. इसमें क्या करना है, क्या होना है? फर्स्ट एलिमेंट, हेलो, इसका इसमें इंटू -1, इसी का इसमें इंटू क्या होना है? 4, इसका इसमें इंटू, बिकॉज रो जाके कॉलम जाके रो में मल्टीप्लाई होता है ना. सो -1 के सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1 4 -3. एंड सेकंड, व्हाट विल बी द वैल्यू? सेकंड 2 minus 8 6, and one से 1 minus 4 3. ये आया मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज किया. अब ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर ट्रांसपोज से क्या होना है? वैल्यू रो कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना है. बस इसको इधर लिख देना, इसको ऐसे ऐसे, या तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो. सो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3. So this is the value of left hand side and right hand side. Right hand side equals to what? B transpose A transpose. यही तो प्रूफ करना है. A B dash equals to B dash A dash. So B dash. So first of all write B dash. B means this. -1 2 1 dash. Then A dash. ये 1 -4 3. A dash. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट्स डैश. इस रो को ट्रांसपोज करोगे तो कॉलम बन जाएगा.
सो क्या होगा, -1 2 1, कॉलम को ट्रांसपोज करना है तो रो बन जाएगा, व्हाट 1 -4 3, दिस। नाउ डू इट्स मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल जैसे मल्टीप्लाई किया था वही करना है। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 3/1 1/3 3/3। सो यहां भी क्या करना है, इस 1 से सबको मल्टीप्लाई, -4 से सबको मल्टीप्लाई, 3 से सबको मल्टीप्लाई। सो डू इट, ये क्या होना है, 1 से मल्टीप्लाई होना है, मींस -1 2 1, -4 से मल्टीप्लाई 4 -8 -4, एंड 3 से मल्टीप्लाई -3 6 3, दिस। देखो दोनों सेम, implies left hand side equals to right hand side, hence proved। a property prove हुआ, ab dash equals to b dash a dash। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहां पर ये एलिमेंट जो है ना, पर्टिकुलरली फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो ट्रू, फॉर एनी मैट्रिक्स a and b which are compatible for multiplication, ab मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है इसका तो प्रूव, बिकॉज ये मल्टीप्लाई डिफाइन होना चाहिए तब जाकर प्रॉपर्टी आएगा, ab dash equals to b dash a dash। ओके, सो वेरिफिकेशन है ओनली, ट्रांसपोज निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, यही सब है। लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड रहेगा, दोनों की वैल्यू निकालना है, सेम मिलेगा। क्लियर है? सो क्वेश्चन 5 को फर्स्ट किया ना, सेकंड सेम प्रोसेस है, बस एलिमेंट अलग है, इसको भी देखना है ना। नाउ टाइम तो ओवर है, बट लेट अस टेक 5 मिनट मोर, है ना। 6 क्वेश्चन देखो, हेलो 6 क्वेश्चन हो जाएगा ना सबसे, देखो सब पूरे एक्सरसाइज, यू कैन डू कंप्लीट एक्सरसाइज। क्लियर है ना, पूरे एक्सरसाइज को प्रूव कर सकते हो, कोई बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर a इक्वल्स टू दिस cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, सो देन वेरीफाई a डैश a इक्वल्स टू i। ओके, सो होना है कि नहीं होना है इस मैट्रिक्स में, देखो a डैश इक्वल्स टू क्या होना है, हेलो शॉर्ट में देख लेते हैं थोड़ा। 6 का पहला फर्स्ट है ना, 6 का फर्स्ट क्या होना है, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा है ना, देखो टाइम कितना जल्दी खत्म हो जाता है। हेलो a डैश a इक्वल्स टू व्हाट विल बी द a डैश, टेल मी a डैश बताओ क्या है। हेलो सीरियसली देखना है ना, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बस। फर्स्ट क्वेश्चन a डैश क्या होगा, a डैश इक्वल्स टू a डैश इनटू a इक्वल्स टू i, यूनिट मैट्रिक्स प्रूव करना है। सो a डैश जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज a डैश मीन्स, तो cos अल्फा sin अल्फा, यहां पर cos अल्फा आएगा, यहां पर sin अल्फा आएगा, एंड देन फर्स्ट रो को कॉलम बनाया, सेकेंड रो को कॉलम बनाया, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये a का डैश निकाला है एंड a लिखना है, a एज इट इज जो लिखा हुआ है, cos अल्फा sin अल्फा and minus sin alpha cos alpha। So if we multiply it, then क्या होना है मल्टीप्लिकेशन में, we can see here multiplication, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में जाना है। सो cos स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। अब फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आना है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। ओके, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, सो यहां पर sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो हियर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। हुआ, वेरीफाई हुआ। हेलो चालू करके रख दिए हो कि देख भी रहे हो, हेलो
हुआ वेरीफाई। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट, ए का डैश लिया पहले और ये लिया फिर इनटू किया, देखो आई आ गया, सो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली यू कैन डू सेकंड।